his graduation and masters in botany from examination in June 2000. The field of applied microbiology and biotechnology. And presented research findings as guest lecturer in Shivaji College, DU, BSc and MSc at Allison. He has been teaching graduate and postgraduate on this lecture series. Now I request Dr. Vivek Kumar Kedia to deliver. Thank you, Dalapati ma'am. Thank you, Dalapati ma'am, for nice introduction. Now everyone join the meeting. Am I audible? Yes, to all of you? Yes, sir. You are audible, sir. Yes, sir. You are audible. Some students are still joining, but you can continue with your lecture, sir. You just start. Okay. Thank you, sir. Thank you. First, I would like to thank Upriti sir for nice introduction to Dalapati man and whole organizing team, Adarsh Pandey sir, for organizing such a nice series from a 6 series of lecture. So I would like to thank everyone and whole team. So today I am going to present a presentation on mechanism of biological nitrogen fixation. Then first question is why I choose nitrogen. Why I choose nitrogen? Why nitrogen is so important? कि today we are talking on nitrogen. अगर हम प्लांट की बात करें तो on dry weight basis nitrogen is the fourth most abundant element या fourth most abundant nutrient element which are present in the plant on dry mass basis because they are a very important constituent of protein, nucleic acid, hormone, chlorophyll, other primary and secondary metabolites of plant. So plants are very important. Nitrogen are very important to the plant. And most of the plant obtain these nitrogen from the soil in the form of nitrate, NO3, 1 negative charge, or in the form of ammonium ion. But the supply of nitrogen is very limited. In the soil pool, the availability of nitrogen is very limited. That's why plants compete for the nitrogen, both in agriculture's ecosystem or naturalist ecosystem. In both ecosystem, the supply of nitrogen is very limited. And because nitrogen is very important constituent of major macromolecules of our body, plant body, so they are very important. So in this presentation, today we will discuss, we have 3 objectives in today's presentation. First objective is what is nitrogen fixation. We should understand what is the basic concept of nitrogen fixation. Another point is how nitrogen cycle in the atmosphere. And the main point is our presentation, our discussion is biochemistry of biological nitrogen fixation. Then the first question arises, what is nitrogen fixation? Nitrogen fixation is the process in which free nitrogen, which are abundantly 78% available in our atmosphere, is converted into ammonia or ammonium ion. The useful form which are available to the plant system. So this conversion of free nitrogen to the ammonium is known as the nitrogen fixation. As we know, 78% of molecular nitrogen are present in our atmosphere. But the most abundant gas is nitrogen. Nitrogen is an odorless, colorless gas, as we know, already we know. इतना ज्यादा 78% होने के बावजूद भी, जैसा मैंने पहले बताया कि नाइट्रोजन की सप्लाई जो है सॉइल पूल में वो लिमिटेड है,
then why limited? When 78% free nitrogen in या dinitrogen is available in our atmosphere, then why it is not available to the plant system? Because dinitrogen have 3 ट्रिपल बॉन्ड, जो आप इस डायग्राम में देख भी रहे होंगे। अगर ये जो ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई पड़ रहा है नाइट्रोजन का, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। आपने पढ़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डिफरेंट टाइप के वंडर वॉल फोर्सेस कई सारे पढ़ोगे। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड, इन सभी जितने बॉन्ड के अभी मैंने नाम लिए, इन सभी में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। यानी इसके डिसोसिएशन के लिए, इनको तोड़ने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है एक प्लांट के लिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया है या प्रोसेस है, ये केवल अगर बायोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि मैं बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करूंगा, मेरा टॉपिक ही है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो ये फ्री डाइनाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, इसको अमोनिया में कन्वर्ट करना या जो प्लांट जिसको एब्जॉर्ब कर सके उस फॉर्म में, यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। और ऐसा यूकैरियोटिक इकोसिस्टम में कोई भी इस तरह का, क्यों लेकर एक्सेप्शनली टर्माइट वगैरह कुछ ऐसे पाए गए हैं जिनमें देखा गया है कि वो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी यूकैरियोटिक प्लांट में एबिलिटी नहीं है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। नाइट्रोजन को फिक्स करने की एबिलिटी केवल प्रोकैरियोटिक डोमेन में पाई गई है, यानी बैक्टीरिया वगैरह में, जो माइक्रोब्स में बैक्टीरिया हैं, उनके अंदर केवल ये एबिलिटी है कि वो जो फ्री नाइट्रोजन है, उस फ्री नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर सके, उसका रिडक्शन कर सके। अमोनिया का मतलब उसका रिडक्शन, Na2 को NH3 करना यानी रिडक्शन करना। तो जो रिडक्शन की कैपेबिलिटी है, ये केवल प्रोकैरियोटिक डोमेन में पाई जाती है, केवल बैक्टीरिया वगैरह में पाई जाती है। और ये जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि इसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, इसको डिसोसिएशन के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, और यहाँ एक नहीं 3 बॉन्ड है। तो जो नाइट्रोजन का रिडक्शन है या नाइट्रोजन का अमोनिया में जो कन्वर्जन की प्रक्रिया है, इट इज अ वेरी कॉस्टली हाई एनर्जी रिक्वायर्ड रिएक्शन है या मैकेनिज्म है। ठीक है, तो हम इसको अभी आगे देखेंगे कि किस प्रकार से नाइट्रोजन जो है रिड्यूस होता है और किसके द्वारा होता है। उससे पहले थोड़ा हम बेसिक आइडिया लेंगे नाइट्रोजन साइकिल का। ये मेरा एक हैंडमेड डायग्राम है नाइट्रोजन साइकिल की, आप इसको देख रहे होंगे अगर इस डायग्राम को, तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यहाँ आपको दिखा रखा है मैंने, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में बाय वॉल्यूम 78% जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन जो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, ये 3 तरीके से कन्वर्ट हो सकता है या फिक्स हो सकता है। ये जो फ्री नाइट्रोजन है, इसका अमोनिया में या नाइट्रेट में जो कन्वर्जन है, यही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, यही हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अब ये 3 तरीके से हो सकता है, बायोलॉजिकली हो सकता है, जो मैंने ये फर्स्ट पॉइंट में आपको दिखा रखा है, इंडस्ट्रियल हो सकता है, ये सेकंड पॉइंट, और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी जो बिजली चमकती है या आकाशीय कोई इस तरह की घटना होती है स्पेस में, उसकी वजह से होता है। तो आप अगर देखेंगे, अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए, तो जो इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो केवल 10% है। जितना भी नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर का फ्री नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन जो फिक्स होता है, वो 10% केवल इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म या फिजिकल मैकेनिज्म के द्वारा होता है, फिजिकल। दूसरा जो सबसे ज्यादा होता है वो है इंडस्ट्रियल के द्वारा, 30% अराउंड आप देखेंगे कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो इंडस्ट्रियल तरीके से होता है या इंडस्ट्री में होता है। और जिस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हैबर्स-बॉश प्रोसेस, बहुत ही हाई एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और हाई एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। इसी की वजह से नाइट्रोजन जो है इतना कॉस्टली होता है, और सरकार जो है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को इसके ऊपर सब्सिडी देती है, क्योंकि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनाना, चाहे एनपीके हो, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में आपके एनपीके आता है और यूरिया आता है मुख्य रूप से, तो इनको बनाना हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, यानी कि ज्यादा पैसा कॉस्टली है, और जो कि हमारे फार्मर्स के लिए पॉसिबल नहीं कि उसको अफोर्ड कर सके, तो इसलिए सरकार उस पर सब्सिडी देती है। तो हमने देखा कि 10% इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, 30% इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जो मेजर पार्ट है बचा हुआ 60% वो बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा होता है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रोब्स के द्वारा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो 60% टोटल नाइट्रोजन का फिक्सेशन है। ठीक है, तो बायोलॉजिकली जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, वो फ्री नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है वो कन्वर्ट होता है अमोनिया में, और हमारे सॉइल में अवेलेबल हो जाता है प्लांट को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो प्लांट है वो अमोनिया को, नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता।
अमोनिया जो गैस है उसको प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता डायरेक्ट। तो प्लांट सॉइल पूल में कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में। ये देखिए अमोनिया है, इसको ये कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट, जो ये रेड कलर के बॉक्स में मैंने दिखा रखा है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ये जो प्रोसेस है अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्रेट में होना, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। और ये 2 स्टेप रिएक्शन है, आप देख भी रहे होंगे इसमें कि फर्स्ट स्टेप में जो अमोनिया है ये कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, जो NO2 चार्ज है और 1 नेगेटिव चार्ज है। तो ये आपका ये है नाइट्राइट, और फिर कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में। ये 2 स्टेप रिएक्शन है, और ये अलग अलग बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है नाइट्रोजोमोनास, और नाइट्राइट को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो ये 2 बैक्टीरिया हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं, जो इसको कन्वर्ट करते हैं, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। और प्लांट जो है वो इस अमोनियम आयन को नाइट्रेट आयन को और अमोनियम आयन को एब्जॉर्ब करता है। एक्चुअली नाइट्रेट आयन को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है अमोनियम आयन में, और अमोनियम आयन को फाइनली वो बना लेता है उससे अमीनो एसिड, जिससे आपको मालूम है कि प्रोटीन बनता है। अमीनो एसिड इज द बेसिक या मोनोमर ऑफ द क्या नाम है, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन, जो भी कहना चाहिए। तो ये प्रोसेस है, इसको आपको समझना जरूरी है कि ये जो प्रक्रिया है अमोनिया की नाइट्रेट कन्वर्जन में, ये सॉइल में होती है, और ये बैक्टीरिया जो नाइट्रोजोमोनास या नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया है उनके द्वारा ये होता है, और ये हमारे सॉइल में नाइट्रेट अवेलेबल हो जाता है, जिसको हमारा प्लांट एब्जॉर्ब करता है। अब जो ये फ्री नाइट्रोजन है, जैसा मैंने पहले ही आपको बोला कि जो फ्री नाइट्रोजन है, जिसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस गैस है, नाइट्रोजन हाईली स्टेबल है, इसको तोड़ना, इसको कन्वर्ट करना, इसका रिडक्शन करना अमोनिया में, जो कि एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, ये केवल प्रोकैरियोटिक डोमेन में पाया जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं डाई नाइट्रोजनेज एंजाइम। मैंने यहाँ बोल्ड दिखा रखा है आपको, बोल्ड में। ये डाई नाइट्रोजनेज एंजाइम की वजह से जो हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो इस और सभी बैक्टीरिया नहीं है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, वो उन बैक्टीरिया के अंदर ये एंजाइम सिस्टम पाया जाता है, और जिसकी वजह से वो इजीली इस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का रिडक्शन कर देते हैं। तो हम बात करेंगे डाइनाइट्रोजनेज एंजाइम की। जो डाइनाइट्रोजनेज एंजाइम है एक मल्टीमेरिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का बना हुआ है। हम जानते हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, जितने भी एंजाइम्स हैं, एक राइबोजाइम को छोड़ के एक्सेप्शन, तो एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो हमारा डाइनाइट्रोजनेज एंजाइम भी जो है वो प्रोटीनेशियस है, मल्टीमेरिक प्रोटीन का बना है। 2 मेजर इसमें 2 पार्ट पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ आपको दिखा भी रखा है, आप इसमें देखेंगे तो 2 पार्ट हैं। एक पार्ट जो है, स्मॉलर पार्ट जो है, उसको बोलते हैं Fe प्रोटीन। ठीक है, Fe प्रोटीन, और ये डाइमर है। ये भी दो सेम सिमिलर यूनिट से मिलकर बना हुआ है, जिनका जो मास है 24 किलो टू 36 किलो डाल्टन के बीच में आता है। क्योंकि ऐसा इसलिए 24 टू 36, क्योंकि जो अलग अलग बैक्टीरियल स्पीसीज हैं, उन स्पीसीज में ये वेरी करता है। ठीक है, तो उन स्पीसीज के हिसाब से किसी में 24 हो सकता है, किसी में 36 किलो डाल्टन के बीच में आता है। तो ये 2 यूनिट होती है, 2 यूनिट मिलकर आइसोमेरिक सेम यूनिट होती है, आइडेंटिकल यूनिट होती है, और इनसे मिलकर बनता है Fe प्रोटीन। ठीक है, और इसमें Fe प्रोटीन जरूर बोलते हैं, लेकिन इसमें 4 मॉलिक्यूल इसके आयरन के होते हैं, और 4 मॉलिक्यूल जो होते हैं सल्फर के पाए जाते हैं। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है Fe4S4। तो ये इनसे मिलकर बना होता है स्मॉलर यूनिट, जिसको हम Fe प्रोटीन बोलते हैं, और ये डाइमर है। जबकि जो लार्जर प्रोटीन है वो टेट्रामर, वो 4 यूनिट से मिलकर बना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसको डायग्राम, तो आपको देख के समझ में आएगा कि 2 यूनिट सिमिलर है, और 2 अदर यूनिट जो है वो अल्फा जो है दिखा रखा है मैंने, अल्फा यानी कि 2 यूनिट सिमिलर है, और बीटा या 2 यूनिट सिमिलर है। टेट्रामर यानी 4 मॉलिक्यूल है, और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 180 किलो टू 220 किलो डाल्टन के बीच में होता है। ये भी वही स्पीसीज टू स्पीसीज, बैक्टीरियल स्पीसीज वेरी करता है, और इसको हम बोलते हैं MOFE प्रोटीन, मोलिब्डेनम। MO का मतलब मोलिब्डेनम से है। यहाँ पे ऊपर वाला जो स्मॉलर पार्ट था, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा प्रोटीन मॉलिक्यूल, एक्स्ट्रा एलिमेंट पाया जाता है, मोलिब्डेनम पाया जाता है। बाकी इसमें भी आयरन और सल्फर पाया जाता है। आप इसको और अच्छे से इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए, ये मल्टीमेरिक प्रोटीन है डाइनाइट्रोजनेज का। ये डाइमर जो है एक जैसी यूनिट है, ये Fe प्रोटीन बोलते हैं इसको, लेकिन ये बना होता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन और 4 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार से ये टेट्रामर यूनिट है, लार्जर पोर्शन है, जिसको हम बोलते हैं
MOFE प्रोटीन यानी कि मोलिब्डेनम आयरन और सल्फर से मिलकर बना होता है। इसमें ये जो दो आपको दिख रही है डार्क कलर की, ये दो सिमिलर है, अल्फा यूनिट और जो लार्जर बीटा यूनिट आपको दिखाई पड़ रही है। तो इस प्रकार से ये टेट्रामर है और ये पूरा एंजाइम हमारा कहलाता है डाई नाइट्रोजनेज एंजाइम। ठीक है, इस एंजाइम को जो स्मॉलर यूनिट है इसको हम बोल सकते हैं डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली रिडक्शन होता है किसका, अभी हम देखेंगे कि फेरोडॉक्सिन के द्वारा इसका रिडक्शन होता है, जबकि जो लार्जर टेट्रामर मॉलिक्यूल है उसको हम सिंपल डाई नाइट्रोजनेज बोलते हैं और यहीं पे अमोनिया, हमारा नाइट्रोजन जो है फ्री नाइट्रोजन, वो कन्वर्ट होता है अमोनिया में। ठीक है, और ये दोनों ही पार्ट, चाहे Fe प्रोटीन हो चाहे MOFE प्रोटीन हो, बोथ पार्ट आर हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। आप देखेंगे यहां मैंने इसको चीज को लिख भी रखी है, रैपिडली एंड इरिवर्सिबली इनएक्टिवेटेड बाय ऑक्सीजन, यानी अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे, तो ये जो इनकी एबिलिटी है या इनकी जो कैटालिटिक एबिलिटी है वो लॉस हो जाएगी, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाएंगे रैपिडली, बहुत तेजी से और इरिवर्सिबली। एक बार इन्होंने अपनी नाइट्रोजन फिक्सेशन की या नाइट्रोजन रिडक्शन की कैपेबिलिटी को लॉस किया तो दोबारा को रिटेन नहीं कर सकते, इसीलिए इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट हो जाते हैं ऑक्सीजन के द्वारा। और इनमें मैंने हाफ टाइम भी बता रखा है, जो आपका स्मॉलर यूनिट है वो विद इन अ सेकेंड 30 to 45 सेकेंड के बीच में इनएक्टिवेट उसका हाफ लाइफ टाइम है, और जबकि लार्जर यूनिट का 10 मिनट हाफ लाइफ टाइम का मतलब जो एंजाइम की एबिलिटी है, जो टर्नओवर नंबर है, यानी कि उसकी जो क्षमता है वो कितने समय में आधी हो जाती है, तो ये हाफ लाइफ टाइम इसको बोलते हैं। तो जो हमारा स्मॉलर यूनिट है Fe प्रोटीन या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे वो अपने एक्टिविटी को विद इन अ सेकंड 30 to 45 सेकंड के अंदर अपनी एक्टिविटी को 50% लॉस कर देता है। और इसी प्रकार से जो MOFE प्रोटीन है हमारा, जो लार्जर यूनिट है, वो विद इन 10 मिनट में अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो आने के बाद वो अपने जो उसकी एबिलिटी है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, उसको लॉस रिड्यूस कर देती है। अब आप इस डायग्राम में देखेंगे कि मैंने इस डायग्राम में दिखा रखा है कि जो इनको रिड्यूसिंग पावर कहां से मिलती है, तो रिड्यूसिंग पावर ये FD का मतलब फेरोडॉक्सिन से है। ये भी एक स्मॉल प्रोटीन है, करीब 14 to 20 14 से 20 किलो डाल्टन यूनिट का होता है, किलो डाल्टन का होता है। और इसको ये भी आयरन सल्फर ग्रुप का प्रोटीन है, और आपने इसको रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में देखा होगा, पढ़ा होगा। तो ये जो रिड्यूस फॉर्म फेरोडॉक्सिन है, ये रिड्यूस फॉर्म हमको फोटोसिंथेसिस से मिलता है, फोटोसिंथेसिस में रिड्यूस फॉर्म, और हम Fe प्रोटीन बोलते हैं, जो आयरन और सल्फर का बना है। हमने आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि आयरन दो फॉर्म में पाया जाता है इस तरह के कंडीशन में। एक होता है Fe2 पॉजिटिव, जिसको हम फेरस आयन बोलते हैं, और जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, जब यानी कि अपना एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा पहली बात तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जो मैं बार बार ये शब्द बोल रहा हूं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा सिंपल फॉर्म में कि रिडक्शन क्या है। अगर कोई चीज है, कोई कंपाउंड है, कोई एलिमेंट है, अगर हम उसमें हाइड्रोजन जोड़ दें, देखिए 3 तरीके से रिडक्शन हो सकता है सिंपल तरीके से, या तो उसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, या उसमें से ऑक्सीजन निकाल लिया जाए, या उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए, तो ये रिडक्शन। किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी एलिमेंट में अगर हम हाइड्रोजन जोड़ दें, या हम ऑक्सीजन निकाल लें, या इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, तो उस मॉलिक्यूल का, उस एलिमेंट का रिडक्शन हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन इसी की अपोजिट चीज हुई, अगर हम ऑक्सीजन जोड़ दें, हाइड्रोजन रिमूव कर दें और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज है, तो ये आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो Fe2 पॉजिटिव जो फेरस आयन है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्या नाम है, और ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो और ये इसको जो ये रिड्यूसिंग पावर मिलती है, जो ये ऑक्सीडाइज होता है, या रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइज से जो रिडक्शन होता है इसका, ये रिड्यूसिंग पावर इसको मिलती है फेरोडॉक्सिन से। ठीक है, तो इस डायग्राम में ये चीज क्लियर है। अब हम स्टेप वाइज इसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है स्टेप वाइज। तो जो सबसे पहला रिडक्शन का प्रोसेस है, पहला स्टेप है रिडक्शन का, उस स्टेप में आप देखेंगे ये फ्री नाइट्रोजन है, ये 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है डाईएमाइड में। ये देखिए बना हुआ है डायग्राम आपके सामने। फिर जब डाईएमाइड को 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजाइन में, आप ये देखिए। फिर 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सिल एमाइड में, और फाइनली कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। तो जो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसको बोरिस साहब ने दिया था। ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसकी अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें, जो यहाँ पे मैंने नीचे लिख रखी है आपके लिए,
ये फ्री नाइट्रोजन है। 1680 को बताया था एनर्जी रिक्वायरिंग या कॉस्टली प्रोसेस है ये। 16 एटीपी चाहिए एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, और इसमें 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बने हैं, और जो 16 एटीपी था वो और यहाँ पे 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन का भी कंजम्पशन हुआ, और हमारे 16 एटीपी से कन्वर्ट होकर बचे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बच गए। यहाँ पे एक जो चीज आपको एक्स्ट्रा दिख रही है वो दिख रही है हाइड्रोजन आयन। हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि जो ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से रिलीज हो रहा है इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, इसको कैसे मैनेज करते हैं। ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है इस रिएक्शन का। देखिए 2 सबसे बड़े ड्रॉबैक हैं। आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में 2 सबसे बड़े ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक ये है, या 2 लिमिटेशन है, ड्रॉबैक कह लीजिए, लिमिटेशन कह लीजिए, वो ये है कि एक तो पहला कि ये हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। यहां देख रहे हैं 16 एटीपी यूज हो रही है एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन फोटोसिंथेसिस में, कि एक कार्बन मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए जब हम ग्लूकोज बनाते हैं 6 कार्बन को फिक्स करना पड़ता है। एक कार्बन को फिक्स, अगर 6 को फिक्स करके 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है 18 एटीपी की, 18 एटीपी की। यानी कि अगर हम देखें एक कार्बन मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए हमें 3 एटीपी की या 3 एटीपी की जरूरत पड़ती है, जबकि एटीपी की जरूरत पड़ रही है। तो कार्बन के लिए 3 एटीपी जरूरत पड़ती है और नाइट्रोजन के लिए 16। तो दिस इज अ वेरी हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। तो पहला लिमिटेशन तो यह है कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। दूसरा कि इसमें जो ये हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है, ये भी हमारे लिए एक ड्रॉबैक है, क्योंकि एक तो एनर्जी लग रही है, एनर्जी लगने से जो ये हाइड्रोजन बन रहा है ये हमारे किसी यूज का नहीं है, किसी काम का नहीं है, वेस्टफुल प्रोसेस है ये पूरी तरह से। तो कैसे इसको यूटिलाइज करा है इसको हम आगे देखेंगे। तो ये 2 लिमिटेशन हमारे सामने आती है, ड्रॉबैक आती है। और लिमिटेशन हमने पहले ही बात कर ली कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये स्टेप नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि जो डाइनाइट्रोजनेज एंजाइम है दे आर हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। हमने देखा कि दोनों पार्ट, स्मॉलर एफी प्रोटीन भी और लार्जर एमओएफी प्रोटीन जो है, दोनों ही ऑक्सीजन के लिए हाईली सेंसिटिव है। अगर ऑक्सीजन रहेगी तो वो एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो ये इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है जब हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो देखिए मैंने इस चीज को यहां लिखा भी है कि हमारा जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का वो अमोनिया है। वही हमारे ऑब्जेक्टिव है, हमें अमोनिया बनाना था नाइट्रोजन से, वो तो बन गया, लेकिन साथ में हर नाइट्रोजन अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलता है, जो कि हमारे लिए एक वेस्टफुल प्रोसेस है। ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये वेरी कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। और देखिए यहाँ पे एस्टिमेट भी किया गया है, एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए 25 एटीपी चाहिए। अभी आप बोलेंगे कि सर अभी पहले जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था उसमें 16 एटीपी देखा था। हाँ ठीक है, 9 एटीपी की हमें जरूरत और इसलिए पड़ती है, जो हम फेराडॉक्सिन, हमने रिड्यूस्ड फेराडॉक्सिन को यूज किया, उसको बनाने का या उसको हम एटीपी में कन्वर्ट करते तो वो इक्विवेलेंट होता है, 9 एटीपी के इक्विवेलेंट होता है। तो इस प्रकार से टोटल एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन को बनाने के लिए जब हमने प्रैक्टिकली इसको करके देखा, लैब में साइंटिस्टों ने करके देखा, तो उन्होंने ये पाया कि एक सिंगल मॉलिक्यूल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए 25 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दिस इज अ वेरी हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। और ये भी देखा गया कि सोयाबीन में करीब 1 ग्राम नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए करीब 12 ग्राम कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप सोचिए कि 12 ग्राम कार्बन की कॉस्ट पे 1 ग्राम नाइट्रोजन का फिक्सेशन या कन्वर्जन हो रहा है। तो दिस इज अ हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। हाँ, इस डायग्राम में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है, एक तो हम पहला ये डिस्कस करते हैं कि एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे क्या विरोधाभासी बात है, क्या हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है वो क्या है। प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन सेंसिटिव है डाइनाइट्रोजनेज एंजाइम, ठीक है, यानी कि अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाएगा, उसकी एबिलिटी लॉस हो जाएगी, जैसा बार बार मैंने आपको बताया। लेकिन हम ये भी जानते हैं रिस्पायरेशन, जहां पे हम ग्लूकोज को या कार्बन को हम कन्वर्ट करते हैं एटीपी में, रिस्पायरेशन के मैकेनिज्म में जब आपने पढ़ा होगा, तो रिस्पायरेशन 2 तरह का हो सकता है, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक यानी ऑक्सीजन की अब्सेंस में। जब आप ये इस प्रोसेस यहाँ पे ये दिखाई गई है, थोड़ा क्लियर नहीं आ रही पिक्चर, जो भी रीजन होगा,
लेकिन आप जानते हैं इस चीज को, ये कॉमन चीज है, बेसिक आपने पढ़ा होगा इसको ग्लाइकोलाइसिस में, अरे रेस्पिरेशन में, कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस की प्रेजेंट एरोबिक कंडीशन होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है सिस्टम में, तो एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो अराउंड 36 और 38 एटीपी बनाता है, नेट एटीपी बनाता है 36 या 38, ठीक है, आपने पढ़ा है इसको। और अगर ऑक्सीजन अब्सेंट है, यानी कि अगर एनारोबिक कंडीशन है, ऑक्सीजन अब्सेंट है, तो एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का वो केवल 2 एटीपी बनाता है, ओनली 2 एटीपी। अगर ऑक्सीजन अब्सेंट है तो केवल 2 एटीपी बनेगी, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो 36 या 38 एटीपी बनेगी। तो अब देखिए, अगर हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए तो हमें एरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, यानी ऑक्सीजन होना चाहिए, और अगर ऑक्सीजन होगा तो डाई नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो काम नहीं करेगा, वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो अब ये जो चीजें हैं, ये जो ड्रॉबैक है इस सिस्टम, ये जो हमारे सामने लिमिटेशन है या ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए जो नेचर ने, माइक्रोब्स ने या प्रोकैरियोटिक सिस्टम ने किस तरह से स्ट्रेटेजी अपनाई है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे सामने हाइड्रोजन आया उसका हम क्या कर सकते हैं। जो हाइड्रोजन बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें मिला था, हमने देखा कि जब बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा था तो एक मॉलिक्यूल अमोनिया के साथ एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का भी प्रोड्यूस हो रहा था, जो कि वेस्टफुल प्रोसेस है। तो इसको यूज करने के लिए हमने देखा या पाया कुछ माइक्रोब्स में, कुछ माइक्रोब्स नाइट्रोजन फिक्सिंग जो माइक्रोब्स थे, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे, वो क्या करते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं करते, बल्कि उस हाइड्रोजन को रीयूटिलाइज कर लेते हैं, रिसाइकिल कर लेते हैं और उसको एटीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं कपलिंग रिएक्शन के द्वारा। आपने पढ़ा होगा पीटर निकेल साहब का, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था, कि किस प्रकार से कपलिंग रिएक्शन के द्वारा एटीपी बनती है, एटीपी सिंथेटाइज एंजाइम के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसको हम पावर को कुछ माइक्रोब्स यूज करते हैं, रिसाइकिल कर लेते हैं प्रोटॉन को, हाइड्रोजन आयन को, और कन्वर्ट कर लेते हैं एटीपी में। उसके लिए उनके पास एक स्पेशल प्रकार का एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजनेज एंजाइम, जिसको मैंने बोल्ड करके यहाँ दिखा भी रखा है, हाइड्रोजनेज एंजाइम। इस एंजाइम की प्रेजेंस में जो माइक्रोब्स होते हैं या जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो हाइड्रोजन को रिसाइकिल कर लेते हैं और एटीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है वो हाईली इफिशियंट हो जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये भी देखा गया कि जो हाइड्रोजनेज एंजाइम है उसकी जो बायोकेमिस्ट्री या फिजियोलॉजी है, उसका जो एक्शन है वो डिपेंड करता है बप जीन के एक्सप्रेशन पे। ये मैंने यहाँ दिखा रखा है, बप जीन के एक्सप्रेशन पे हाइड्रोजनेज एंजाइम का जो बायोकेमिस्ट्री है या फिजियोलॉजी है वो डिपेंड करता है। तो आज बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जानते हैं कि बायोटेक के माध्यम से हम माइक्रोब में जेनेटिक चेंजेस कर सकते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हम इस तरह के नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बना रहे हैं, ऐसे राइजोबियम स्ट्रेन बना रहे हैं जिनके अंदर बप जीन पाई जाए, ताकि हमारा जो हाइड्रोजन रिलीज हो वो एटमॉस्फेयर में रिलीज ना होकर हम उसको रिसाइकिल कर लें और उसको एटीपी में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो इस प्रकार से एक तरीका ये हुआ कि हम एटीपी जो कॉस्ट इफेक्टिव था उसको हम थोड़ा बहुत हाइड्रोजन को रिसाइकिल करके हम अपना जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक तरीका ये था जिसके द्वारा, इस बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, इस बप जीन के इस्तेमाल के द्वारा हम उस लिमिटेशन से थोड़ा बहुत बच सकते हैं। लेकिन साथ ही नेचर ने भी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज अपनाई जिसके द्वारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो ड्रॉबैक है, ऑक्सीजन जो सेंसिटिव डाइनाइट्रोजनेज जो एंजाइम है, उससे बचने के लिए कुछ सिस्टम नेचर ने भी बनाया। तो 3 सिस्टम नेचर ने अपनाया या किया। एक तो पहला जो है फैकल्टेटिव एनारोबिक लाइफस्टाइल। फैकल्टेटिव एनारोबिक लाइफस्टाइल का मतलब यह है कि जब माइक्रोब को एनर्जी बनानी है, एटीपी की सिंथेसिस करनी है, तो एरोबिक सिस्टम में सर्वाइव करता है या रहता है और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 या 38 एटीपी बना लेता है और इस प्रकार से मोस्ट मतलब मैक्सिमम जो एनर्जी बन सकती है वो बना लेता है। लेकिन जब उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करना होता है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन के लिए डाइनाइट्रोजनेज एंजाइम हाईली सेंसिटिव है, तो वो एनारोबिक कंडीशन में चला जाता है, एनारोबिक कंडीशन में रहकर और नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेता है और उस बनी हुई एटीपी को यूज कर लेता है और फिर जब एटीपी बनाना होता है तो आ जाता है एरोबिक कंडीशन में। और इस प्रकार से वो दोनों, ये जो ड्रॉबैक था उससे बच जाता है कि एनर्जी भी मैक्सिमम बना सके और नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सके। तो एक तो तरीका यह है कि फैकल्टेटिव एनारोबिक लाइफ स्टाइल अपनाकर माइक्रोब जो है इस कंडीशन से, इस प्रॉब्लम से बच सकता है। दूसरा हमने देखा साइनोबैक्टीरिया में, जो जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, नॉस्टॉक वगैरह में, वहां पे एक स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। आप देख रहे हैं, आपने देखा भी होगा, ये हेट्रोसिस्ट सेल है।
ठीक है। हेटेरोसिस सेल देखेंगे जो नॉर्मल सेल होती है उनसे थोड़ा साइड में बड़ी होती है, ठीक है, साइड में बड़ी होती है। और जो इनकी वॉल होती है वो हाईली थिक होती है। थिक इसलिए होती है ताकि इसमें अंदर से ऑक्सीजन, बाहर से आउटर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर न जा सके। तो एक तरीके से ये हो गया कि ये इन्होंने एक आइसोलेटेड कंडीशन बना दी जहां पे ऑक्सीजन न जा सके और वहां पे वो नाइट्रोजन फिक्स कर सके। लेकिन वहां पे भी ऑक्सीजन होगी सेल के अंदर, सेल को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए तो ऑक्सीजन होगी। तो पाया गया है कि जो हेटेरोसिस्ट होती है वहां पे जो रिस्पायरेशन का रेट है वो बहुत ही ज्यादा हाई रिस्पायरेशन का रेट है। तो हाई रिस्पायरेशन के रेट की वजह से जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन रिस्पायरेशन एरोबिक होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस कर सके, तो वो वहां की ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेती है और जिसकी वजह से जो वहां कंडीशन क्रिएट होती है वो एनारोबिक होती है और इजीली नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है एनारोबिक कंडीशन में। पहली चीज ये। दूसरा, हेटेरोसिस्ट में क्या पाया गया कि हेटेरोसिस्ट में, क्योंकि हमें मालूम है कि नॉस्टॉक जो है या जो ये साइनोबैक्टीरिया है ये फोटोसिंथेटिक एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, फोटोसिंथेसिस होती है। और फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा कि दो तरह के पिगमेंट सिस्टम है, फोटोसिस्टम सेकंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट। मैंने सेकंड पहले इसलिए बोला क्योंकि जो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है या जहां वाटर टूटकर जब ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, ये जो प्रोसेस है ये फोटोसिस्टम सेकंड पे होती है। और पाया गया कि हेटेरोसिस्ट में फोटोसिस्टम सेकंड एब्सेंट होता है, फोटोसिस्टम सेकंड नहीं पाया जाता। तो इसकी वजह से वहां ऑक्सीजन की सिंथेसिस नहीं होती या ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता फोटोसिंथेसिस के दौरान भी। लेकिन वहां फोटोसिस्टम 1 पाया जाता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिस्टम 1 जो होता है वो फोटोफॉस्फोराइलेशन के द्वारा एटीपी बनाता है। तो एटीपी तो चाहिए, तो उसके लिए फोटोसिस्टम 1 तो उन्होंने रखा है, लेकिन चूंकि उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो उन्होंने फोटोसिस्टम सेकंड को नहीं रखा है। तो हेटेरोसिस्ट में फोटोसिस्टम 1 पाया जाता है और फोटोसिस्टम सेकंड जो है वो एब्सेंट होता है। और प्लस ताकि जो ऑक्सीजन रहे वो भी ना डिस्टर्ब करे, डाइनाइट्रोजनेज को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए वहां देखा गया है कि जो रिस्पायरेशन का रेट है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन इजीली हो जाता है। तो ये दूसरी स्ट्रेटेजी है जो नेचर में माइक्रोब्स के द्वारा अपनाई गई, अडॉप्ट की गई। ठीक है, तो पहली स्ट्रेटेजी थी फैकल्टेटिव एनारोबिक लाइफस्टाइल, दूसरी स्ट्रेटेजी थी हेटेरोसिस्ट के द्वारा, और जो तीसरी स्ट्रेटेजी है जिसको हम सबसे ज्यादा देखते हैं हायर प्लांट में, आपके लेग्यूमिनस प्लांट में देखते हैं कि वहां पे पाया जाता है एक पिंक कलर का एक मॉलिक्यूल पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लेग हेमोग्लोबिन। ठीक है, जैसे हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो उसी प्रकार से ये पिंक मॉलिक्यूल रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग, जहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया राइजोबियम वगैरह पाए जाते हैं, ये पल्सेस दालों में पाए जाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट में पाए जाते हैं। तो वहां पे ये पिंक कलर का मॉलिक्यूल है और ये पिंक मॉलिक्यूल भी उसी प्रकार से होमोग्लोबिन की तरह ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है और जो डाइनाइट्रोजनेज एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाने का है, वो ऑक्सीजन से बचा रहता है और नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर लेता है। और ऑक्सीजन के होने की वजह से जो सेल्स हैं वो एरोबिक रिस्पायरेशन करती हैं और मैक्सिमम एटीपी की सिंथेसिस कर लेती हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल के द्वारा। तो इस प्रकार से जो ड्रॉबैक थे नाइट्रोजन फिक्सेशन के, जो हमारे सामने लिमिटेशन थे नाइट्रोजन फिक्सेशन के, कि हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है और ऑक्सीजन सेंसिटिव है, उन प्रॉब्लम से, उन ड्रॉबैक से इस स्ट्रेटजीज के द्वारा नेचर में एडॉप्टेशन के द्वारा हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो इजीली नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं या अपने आप को सेव कर लेते हैं। तो ये आज का मेरा प्रेजेंटेशन था। थैंक यू। Thank you sir for such a nice informative कोई lecture. क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है, क्योंकि मेरे ख्याल से 11-20। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। Ma'am, this is lecture actually for the student. Yes sir. Yes sir, and Ma'am, if any query from the student side, कोर्स में भी है सर, इनके ग्रेजुएशन में भी और पीजी में बॉटनी में है, लेकिन ग्रेजुएशन। हाँ सर, इसीलिए मैंने मेरे यहाँ भी हाँ सर, इसीलिए मैंने इसको चूज किया क्योंकि मैं थोड़ा और कहीं बिजी था, लेकिन चूंकि ये मेरे पास ऑलरेडी प्रिपेयर था तो मैंने कहा कि आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं। तो और अच्छा लेक्चर है, अगर बच्चों को कुछ पूछना है तो मुझे अच्छा लगेगा सर शेयर करना, उनसे बात करने में। बिल्कुल सर, किसी को भी अगर कुछ पूछना है तो इसको हमने रिकॉर्ड भी कर लिया सर, इसका हम लोग लिंक भी भेज देंगे आपको रिकॉर्डिंग का। अभी तो सर बच्चे हमारे कॉलेज से ज्वाइन किया हुआ है, पता नहीं वो कितने क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं या नहीं। अगर आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस लेक्चर। और
सर्टिफिकेट होगा और अगर आप लोग नहीं पूछ रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि मेरी बात आप लोग तक पहुंची नहीं है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये बच्चे जी कनेक्टेड सर, हैं अपन कॉलेज से, इनको हम लोगों ने इंस्ट्रक्ट किया हुआ था कि माइक ऑफ करने के लिए, तो अगर किसी को पूछना हो तो अपना माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं बच्चे। और थोड़ा सा तो भी मुझे लगता है कि चीजें No questions? Okay, sir, then let's call it a day. Thank you very much for such a nice lecture. It was indeed a very informative lecture, or we'll look forward for further participation of yours in our program. Thank you, sir. Thank you very much. thank you sir, so much, for sir. this invitation, sir. Thank you.